Hello students, welcome to Crack Grade B online learning platform. So today we have special guest with us, Mr. Ekant Garg, and he has cleared RBI Grade B 2023 exam. So first of all, many congratulations, Ekant, for this great achievement. Yeah, thank you so much, sir. Okay. So I would like to introduce about him. He has completed his graduation from Motilal Nehru College, Delhi University, and after completing his graduation, a BCom, he is working with the Bank of India as a probationary officer. So it was his third attempt. So more we will know about from Ekans that how he has prepared for this exam. So first question, generally working aspirants, specifically banking aspirants, and maximum aspirants are from the banking sector in for RBI grade exam. So there are different timing for different areas. Some working aspirants 9 to 8 they are working, and in some areas in the banking sector they are working 9 to 6. So there are different working hours due to pressure in banks nowadays. So how did you manage the time? This is the question generally working aspirants ask. Uh, so how So the did you first manage thing the is, time? Yes. I was posted in a rural branch. Mhm. So I generally don't have that much of pressure in that branch. Like I used to go to branch at around 9:30 a.m. and used to leave from the branch at around 6 or 6:30 p.m. So I used to wake up at around 7 a.m. so that I'm having at least 2 hours to give to general awareness as well as one mock for the phase one. And by the time I reach home at around 6:30 or 6 p.m., I'm also having after 7 p.m. I'm having so much time, like I'm having at least 4 hours to give time to phase two preparation or write descriptive writing, etc. So in that way, it was very manageable. Mhm. Okay. So it was your third attempt. So first you missed by some marks only, 4 5 marks. In second attempt also you missed by 8 9 marks. So how did you keep yourself motivated? So in all the attempts I have reached interview, so in every attempt I felt that it was an achievement for me. Mm. Like in my first attempt I reached interview, then in second attempt I reached interview, although it was disheartening for not clearing the cutoff or not getting selected, but every time I used to feel that it is an achievement for me for reaching this stage two times. Like in the second attempt I raised. So uh, in terms of motivation, I know what RBI would mean to me, like what career I'll be getting at the Reserve Bank. So that kept me motivated. तो एक स्पेसिफिक चीज जो आरबीआई की कि जो जिसने मोटिवेट किया कि आरबीआई के बारे में कि मुझे आरबीआई में मेरा सिलेक्शन हो गया तो दिस विल बी वन बिगेस्ट अचीवमेंट, मतलब आरबीआई की क्या स्पेसिफिक थिंग यू अट्रैक्टेड यू? सर यही आंसर, मतलब आई नो कि आपने मेरे से मॉक इंटरव्यू में पूछा था। एंड और मेरा तब भी सेम रिप्लाई था, अभी भी सेम रिप्लाई हुआ कि आरबीआई के डाइवर्स फंक्शंस हैं जो कि कोई और नहीं कर सकता है, और वो ही डाइवर्स फंक्शन ने मेरे को अट्रैक्ट करा है। मतलब जैसे इशूअर ऑफ करेंसी कोई नहीं कर सकता है, मॉनिटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन कोई नहीं कर सकता है, रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ बैंक्स कोई नहीं कर सकता है, फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट भी कोई नहीं कर सकता है। तो वो चीज कोई भी नहीं कर सकता है। तो दैट वाज माय मेन टारगेट, कि मतलब एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में मैं जा रहा हूँ जहाँ पे मैं एक तो ये चीज तो मैं सीखूंगा ही, और डाइवर्सिफिकेशन भी है कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने पूरे करियर में केवल एक ही डिपार्टमेंट में पोस्ट रहूंगा। तो आई विल गेट टू लर्न मेनी थिंग्स। ओके, सो एकांश थर्ड अटेम्प्ट था, 2 बार रिजल्ट में पॉजिटिव नहीं रहा, तो एक डर भी रहता है माइंड में कहीं ना कहीं कि इंटरव्यू देने के बाद भी माइंड में कंटिन्यूस चल रहा होगा कि रिजल्ट आएगा क्या होगा। तो इस बार का क्या एक्सपीरियंस था कि मतलब कॉन्फिडेंट थे आप सिलेक्शन के लिए, या अब इस बार भी डर लग रहा था? सर इस वाले अटेम्प्ट में तो मैं स्टार्टिंग से बहुत कॉन्फिडेंट था। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द फेज वन आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि आई इजीली क्लियर, फिर फेज टू आई इजीली क्लियर। इवन इन द इंटरव्यू आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मतलब इन माय प्रीवियस टू इंटरव्यू प्रिपरेशंस आई वाज डेडिकेटेडली प्रिपेयरिंग कि हम्म। whole day I'm just reading RBI annual report or monetary policy or something, any circular like this. But in this attempt मैंने बहुत कम पढ़ाई करी, मतलब इंटरव्यू के लिए भी बहुत कम पढ़ाई करी, और फोकस्ड ऑन माई सेल्फ। लाइक मतलब जब मेरा करंट बैंक में था तो मतलब मैं क्या क्या काम कर रहा था वो सब चीज पे मैंने फोकस करा है केवल। बहुत कम प्रिपरेशन मैंने करी थी।
एंड स्टिल आई वाज कॉन्फिडेंट विच मतलब वो मेरे को भी नहीं पता कि ऐसा क्या रीजन था कि आई वाज इतना कॉन्फिडेंट। ओके। और लास्ट दो अटेम्प्ट से इस बार अटेम्प्ट की प्रिपरेशन में, मतलब इस साल प्रिपरेशन में क्या चेंजेस किए कि यू स्कोर्ड वेल इन बोथ एग्जाम एज वेल एज इन द इंटरव्यू? सो एग्जाम में लाइक माय फर्स्ट टू अटेम्प्ट्स वाज कंप्लीटली सेल्फ प्रिपरेशन। मतलब आई डिड नॉट टेक एनी कोचिंग और कहीं से कोई हेल्प नहीं ली थी मैंने शुरू के दो अटेम्प्ट्स में, बट स्टिल आई वाज एबल टू क्लियर फेज 1 एंड फेज 2 इन दैट सेंस। बट सर थर्ड अटेम्प्ट में क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स थे मेरे पास, मतलब even though I am having 5 hours or maximum 6 hours of study time, but still I don't want to waste my time on gathering all the things कि मतलब पीआईबी में मेरे को क्या पढ़ना है या फिर करंट अफेयर्स में मेरे को क्या सोर्स, तो मेरे को वो सोर्स कलेक्ट नहीं करने थे सोर्स पे, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता नोट्स बनाने में। तो फॉर दैट रीजन आई परचेज द क्रैक ग्रेड बी कोर्स। ओके। और एक और क्वेश्चन मैं जनरली पूछता हूँ ये कि एग्रेसिव मार्केटिंग है, फिर क्रैक ग्रेड भी ही क्यों सिलेक्ट किया? एंड सर मतलब अफोर्डेबिलिटी वाज नॉट एन इशू फॉर यू बिकॉज यू आर वर्किंग इन ए बैंक? सर बिफोर परचेजिंग मैंने मोस्टली जितने भी प्रोमिनेंट कोचिंग्स हैं मैंने उनका ट्रायल लिया था। तो द ओनली प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड वाज कि बहुत बल्कि मटेरियल मेरे को लगा था, और आरबीआई के टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत चेंज होता जा रहा है, पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया जो 2019 में था, वहां से अब 2023 में बिल्कुल चेंज पैटर्न हो चुका है और बहुत डेप्थ क्वेश्चंस पूछते हैं वो। तो उस कंपैरिजन में मेरे को सीजीबी ने एक एडवांटेज दिया कि उनके पीडीएफ्स बहुत ही लाइट वेट थे, मतलब 50 पेजेस 60 पेजेस, और क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा था। न्यूज़पेपर वाला अलग था और फिर एक मंथली पीडीएफ अलग था जिसमें ऑबिचुरीज और नेशनल स्पोर्ट्स ये सब था, वो अलग था। फिर एक पीआईबी का अलग से था, आरबीआई नोटिफिकेशंस का अलग से था। तो मेरे को ये पता था कि मेरे को कौन सा पीडीएफ कैसे पढ़ना है। जैसे मेरे को आदत है कि मैं आरबीआई नोटिफिकेशंस खुद से पढ़ता हूँ, तो मेरे को अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो मेरे को बस वो आरबीआई नोटिफिकेशंस वाला पीडीएफ खोलना है ग्रेड बी का और केवल वो चीज पढ़ लेनी है। तो फॉर दैट फॉर मी इट वाज दैट इजी। Okay, okay. So let's talk about the phase one preparation, that quant and reasoning. And it is quite tough, means, as compared to the previous years, and in level is increasing every year. So how did you manage that? Means what topics you picked in the exam, that these topics you should target, or any planning you done earlier that when you are going to appear this exam, so you will pick those topics only? और बहुत सारे स्टूडेंट चैलेंज फेस करते हैं कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए रीजनिंग क्वांट में, क्योंकि टाइम देखो, मतलब लेंथी क्वेश्चन होते हैं तो टाइम कम पड़ जाता है, एज सेक्शनल टाइमिंग है, और टाइम बहुत लग जाता है सोल्व करने में, तो सिलेक्टिव क्वेश्चन ही सोल्व कर पाते हैं स्टूडेंट। तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी आपने पहले ही बनाई थी कि मैं ये सिर्फ यही टॉपिक्स चूज करूंगा? हम्म। अगर क्वांट में देखें तो कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी नहीं था, मतलब मैंने स्टार्टिंग से ही मॉक्स लगाए हैं बस, हम्म। केवल मॉक्स पे फोकस करा इनिशियली। मतलब इनिशियल प्रेप में आई यूज टू वॉच वीडियोस ऑन यूट्यूब रिगार्डिंग स्पेसिफिक लाइक मिक्सचर एलिगेशन और टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस। सो बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल था यूट्यूब पे, तो मैंने वहां से पढ़ के उनका बेसिक सीखा कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। हम्म। उसके बाद केवल मॉक्स पे फोकस करा, केवल मॉक्स लगाए मैंने, तो उससे स्किल्स अच्छी होती चली गई क्वांट में। रीजनिंग में भी सेम था, बट रीजनिंग में मैंने क्या करा कि एवरी ईयर द टफनेस ऑफ पेपर वाज वेरी इंक्रीजिंग। हम्म। तो मैं क्या करता था, मैं पहले नॉन पजल्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करता था, हम्म। बिकॉज एक बार पजल में स्टक इन हो गए तो फिर आपका 10-15 मिनट्स तो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा उसमें। तो व्हाट आई यूज टू डू कि पहले नॉन पजल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ताकि हम्म। आई वाज एबल टू अचीव द सेक्शनल कट ऑफ। मेरा पहला टारगेट हमेशा ये था कि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, बाकी ओवरऑल कट ऑफ तो जीए ही क्लियर करवाएगा, मेरे को ये कंफर्म था। तो सेक्शनल कट ऑफ मेरा हमेशा टारगेट रहा क्वांट और रीजनिंग में। ओके, ओके। एक और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस के बारे में कि कितने मंथ्स का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए? यू हैव क्लियर 3 times दिस फेज वन, सो हाउ मेनी मंथ्स करंट अफेयर यू स्टडीड? बिकॉज क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट आंसर होते हैं, किसी ने 6 मंथ पढ़ के किया है, कोई बहुत सारे लोग 7-8 मंथ्स भी रिकमेंड करते हैं। तो आपने, यू हैव क्लियर 3 times, सो यू मे हैव एन बेटर आइडिया दैट हाउ मेनी मंथ्स करंट अफेयर्स एनी स्टूडेंट who is preparing for RBI they should focus.
फॉर फेज वन मिनिमम 3 मंथ्स एंड फॉर फेज टू इट्स मिनिमम 6 मंथ्स। बट उसमें ये चीज है, जैसे हम फेज वन प्रिपेयर कर रहे हैं जी जनरल अवेयरनेस, और एग्जाम हमारा अप्रैल में है, तो डिक्रीजिंग वे में प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर अप्रैल में एग्जाम है तो मार्च को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, फेब को उससे कम, जैन को उससे कम, और उससे पीछे के मंथ्स केवल तभी पढ़ने चाहिए जब आपके ये 3 मंथ्स अच्छे से प्रिपेयर्ड हो फॉर फेज वन। और हम्म, फेज टू में मैक्सिमम फोकस पीआईबी पे, स्कीम्स पे, क्योंकि फेज टू में अलग टाइप का जनरल अवेयरनेस आएगा। उनका फोकस मोस्टली यही होगा कि कोई नया स्कीम लॉन्च हुआ है तो उसमें कितना कंट्रीब्यूशन था, तो उस पे फोकस रहेगा, या कोई इंटरनेशनल समिट हुआ है उस पे फोकस रहेगा। तो सेलेक्टिव रीडिंग फेज टू में बहुत जरूरी है, बट ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा, 3 मंथ से 6 मंथ्स करना पड़ेगा। फेज टू की प्रिपरेशन की बात करते हैं। फेज वन वी हैव डिस्कस्ड, एंड फेज वन और फेज टू के बीच में गैप भी ऑलमोस्ट 20-25 डेज का रहता है जनरली। तो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया आपने वाइल यू आर वर्किंग? की कोई लीव ली थी बैंक से, और एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी इन बिटवीन द फेज वन एंड फेज टू गैप? सर इस बार मतलब इन कंपैरिजन टू अदर अटेम्प्ट्स, इस बार फेज वन फेज टू प्रेप में बहुत कम डिफरेंस था। मतलब लाइक फेज वन का रिजल्ट अराउंड 18th और 19th जुलाई को आया था, और फिर हमारा जो मेंस था वो अराउंड 31st जुलाई को था, तो बहुत ही कम डिफरेंस था, 10 डेज का गैप था। तो मेरा जो प्रीवियस प्रिपरेशन था वो मेरे को हेल्प करा है उसमें। बाकी इन टर्म्स ऑफ लीव, मैंने बैंक से कोई स्पेसिफिक लीव नहीं ली थी, बिकॉज मेरा प्रायर एक्सपीरियंस था डिस्क्रिप्टिव में और फेज टू में, इसलिए मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ी थी उस चीज में। ओके ओके ओके। तो क्या स्टडी, कितना मतलब आवर्स यू स्पेंड ड्यूरिंग दोज डेज आफ्टर फेज वन? तो आफ्टर गिविंग माय फेज वन आई ऑलरेडी न्यू दैट आई विल क्लियर द फेज वन एग्जामिनेशन, तो आई टेंड टू गिव एटलीस्ट 6 hours, in ओके which minimum 3 hours to descriptive writing, ओके। along with analyzation, so सब कुछ minimum 3 hours descriptive को दिया था। उसके बाद फिर बचा हुआ टाइम बाकी चीज याद करने, जैसे स्कीम्स वगैरह याद करनी है, या फिर पीआईबी में कुछ याद करना है, या फाइनेंस मैनेजमेंट को अच्छे से याद करना है, तो उसमें मैंने डिवोट करा बाकी टाइम। बट फेज टू में मेजर फोकस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, बिना उसके हो नहीं सकता, क्योंकि 200 नंबर्स वो कैरी कर रहा है आउट ऑफ 300। यस। एक और क्वेश्चन जनरली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से लेके आता है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए न्यूज़पेपर बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब जो सिलेक्ट हुए हैं वो भी रिकमेंड करते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट, बट कुछ वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं उनके पास टाइम का इशू होता है। तो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस, दैट इज न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग? हाँ, फॉर इन माय ओपिनियन न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट, लाइक आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 2019। और न्यूज़पेपर रीडिंग दो पार्ट्स में हेल्प करता है। फेज वन में आपको वो इंग्लिश में हेल्प करेगा, बिकॉज जो फेज वन इंग्लिश क्वेश्चंस हैं वो ग्रामर बेस्ड नहीं आते हैं, वो रीडिंग बेस्ड आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन या फिर एरर्स वाले जो होते हैं वो बहुत ही कम नंबर्स का आते हैं, अराउंड 5 और 6 नंबर्स आएगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं आता है। बाकी फेज टू में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करना है तो न्यूज़पेपर गिव यू आइडियाज की, मतलब ओपिनियंस, या फिर हम एडिटोरियल्स पढ़ते हैं तो दे टेंड टू गिव अस ओपिनियंस कि हम इस, जैसे एनवायरनमेंट का कोई भी टॉपिक आया न्यूज़पेपर में, तो हम उससे एक ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन कैसे हो सकता है, या फिर और भी यस। मतलब जो भी रिसेंट मतलब हैपनिंग्स है आप तो उससे हम आपके अच्छा माइंड में कोरिलेट कर पाते हैं। आपके माइंड में कंटेंट क्रिएट हो जाता है, यू कैन यूज दैट इन द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। यस Which newspaper you follow? Means, which newspaper you are reading? सर, लाइव मिंट बहुत ही Okay. कॉम्प्रिहेंसिव है, Yes, लाइक ऑन द फर्स्ट Mint भी। पेज। फर्स्ट पेज में वो पूरा डिटेल्ड एनालिसिस देते हैं जो करंट बर्निंग टॉपिक है, उसके मतलब फाइव फाइव क्वेश्चंस वो पूछते हैं, उसका आंसर करते हैं, तो उसी से ही पूरा टॉपिक समझ में आ जाता है कि मतलब ये इशू क्यों हो रहा है, उसका क्या मेजर्स हो सकते हैं। तो उसके बाद फिर सेकंड लास्ट और फोर्थ लास्ट पेज से वो उसके एडिटोरियल स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो चीज मेरे को बहुत अच्छा लगता है उसमें। एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं वो पूछते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स अपने से पीआईबी पढ़ लेते हैं या गवर्नमेंट स्कीम्स कर लेते हैं, तो फिर जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके मन में भी आता है कि खुद से भी क्या पीआईबी पढ़ना चाहिए या गवर्नमेंट स्कीम्स, बीइंग ए सब्सक्राइबर ऑफ एनी प्लेटफॉर्म। हम्म
सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस कि सब्सक्राइबर होने के बाद भी किसी भी प्लेटफॉर्म का कि उन्हें खुद से भी पीआईबी और स्कीम्स खुद से पढ़ने चाहिए, जो भी रेफरेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट है वहां से? तो मैंने जैसा बताया आपको कि फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मैं सेल्फ प्रिपरेशन में था। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई पीआईबी खुद से पढ़ना चाहता है तो उसको ईएसआई एफएम का सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। हम्म। बिकॉज वो फिर बाय चूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि पीआईबी में डेली अगर 40-50 आर्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको नहीं पता चलेगा कि उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम्म। वो आपका फिर टास्क बढ़ जाएगा। तो अगर आपको वो नहीं पता है तो फिर कोचिंग पे स्विच करना बहुत जरूरी है। और मेरे फर्स्ट 2 प्रिपरेशन में क्योंकि मैं सेल्फ, मेरे पास बहुत टाइम था, सोली प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, तो इस वजह से मैं पीआईबी खुद से करता था। बट इन माय लास्ट अटेम्प्ट टाइम कंस्ट्रेंट था कि मेरे को उतना टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना था। तो हम्म। इसलिए मैंने फिर सीजीपी का कोर्स लिया था। Okay, okay. So, if we talk about descriptive writing, so how many words you typed in the final exam? सिक्स Like, हंड्रेड वर्ड्स हाँ, yes, फॉर yes. 600 वर्ड क्वेश्चन आई यूज टू राइट 500 वर्ड्स, Mhm. एंड फॉर 400 वर्ड्स क्वेश्चन आई यूज टू राइट अराउंड 340 to 360 वर्ड्स। Okay, okay. ये स्टैंडर्ड था, बिकॉज इन एवरी अटेम्प्ट आई यूज टू फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन द क्वांटिटी, और वो हर अटेम्प्ट में वर्क कर रहा है मेरे को Mhm. कि वर्ड्स मैटर नहीं करेगा, ओनली क्वालिटी मैटर करती है। ओके। एक और चीज है कि गवर्नमेंट स्कीम में देखो हमें बहुत सारे फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं कि एलोकेशन क्या है, स्टेट्स सेंटर की फंडिंग हो गई, ईयर ऑफ लॉन्च हो गया, ईयर ऑफ सनसेट हो गया, और मेन फीचर्स। और स्कीम भी काफी है, इम्पोर्टेंट भी है ईएसआई के लिए, आपके फेज 1 जीए में भी पूछी जाती है। और इस बार तो फाइनेंस में फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम्स भी पूछी गई थी। तो इतना सारा फैक्ट्स में ना जनरली क्रैम करने में स्टूडेंट चैलेंज फेस करते हैं। So, what was your strategy to learn the schemes or to study the content of the schemes specifically? इनिशियल प्रेप में मैंने जो बेसिक स्कीम्स थी वो मिनिस्ट्री से ही, मतलब मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे सर्च करके मैंने करी थी। हम्म। बट उसमें बहुत ज्यादा डेटा एक्यूमुलेट हो गया था, बहुत हम्म। ज्यादा, कि मतलब कब लॉन्च हुई, उसमें कितना कॉर्पस है, किसको टारगेट कर रहे हैं, क्या उसमें बेनिफिट्स हैं। तो अगर फाइनेंस स्पेसिफिक देखें तो वो तो चल जाता है, बट जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की स्कीम्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की, इनमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे पीएम विश्वकर्मा रिसेंटली लॉन्च स्कीम थी, हम्म। इनमें बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये सब चीज याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इस चीज में कोर्स ने हेल्प करा था मेरे को थोड़ा सा, कि मेरे को ये पता था कि मेरे को केवल इतना पढ़ना है। हम्म। तो मतलब मैंने बाय हार्टेडली फिर मैंने कोर्स को फोकस करा। मैं सोचा कि आई वुड नॉट, मतलब बार बार मैं चीजें चेंज, स्ट्रेटेजी चेंज नहीं कर सकता। एक हम्म। स्ट्रेटेजी पे फिक्स करके मेरे को मूव ऑन करना पड़ेगा। अब मैंने सीजीबी का कोर्स लिया है, तो मेरे को इसी पे स्टिक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। Okay, okay. And now comes to the finance and management. So, what was your strategy for the finance and management? मैं बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएट हूँ, तो ईएसआई में मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। इकोनॉमिक्स अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं हम। सोशल हम्म। इश्यूज थोड़ा सा पढ़ना पड़ा, बट वो बहुत बेसिक्स थे, तो वो भी बहुत आराम से गूगल सर्च करके, या फिर यूपीएससी मटेरियल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में, तो उन हम्म। सब से बहुत आराम से हो गया शुरू के 2 अटेम्प्ट्स में। फिर फाइनेंस मैनेजमेंट अंडर ग्रेजुएट हूँ बीकॉम ऑनर्स में, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर फाइनेंस बहुत अच्छे से था, मतलब बहुत बेसिक सिलेबस था आरबीआई का। आरबीआई का हम्म। फोकस है ही नहीं फाइनेंस, उनका फोकस मतलब फाइनेंस टाइप क्वेश्चंस नहीं, वो करंट अफेयर्स टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं फाइनेंस में भी, कि आरबीआई का सर्कुलर आ गया कोई तो Circulars. उस पे, उसमें पूछ लिया, या फिर कोई रीसेंट डेवलपमेंट है उससे पूछ लिया। तो वो उनका मेजर फोकस है। न्यूमेरिकल्स तो आ ही नहीं रहे हैं वहाँ एग्जाम में, तो फाइनेंस से डरने की कोई बात ही नहीं है। Okay, okay. मतलब स्टिक टू द सिलेबस एंड आरबीआई सर्कुलर तो आपका फाइनेंस हो जाएगा। और लास्ट सिलेबस दो तीन सिलेबस तो साल सर से। याद होना बहुत यस। जरूरी है, बिकॉज अगर हमें सिलेबस याद नहीं होगा तो हम कोई चीज पढ़ेंगे, हम उसको हाँ। कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि वो कितना रेलेवेंट है। और सर ये भी चीज है कि हमें प्रीवियस ईयर देखे होने चाहिए, कि जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखेंगे हमें पता चलेगा कि आरबीआई क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है, किस टाइप के वो क्वेश्चंस पूछ रहा है। बिकॉज अगर किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं और वो फाइनेंस का सिलेबस देखेगा, क्योंकि फाइनेंस में डेरिवेटिव्स भी दे रखा है, तो वो तो डेरिवेटिव्स के हार्डकोर जो
टॉपिक्स हैं और फ्यूचर्स ऑप्शंस, वो सब फॉर्मूलाज वगैरह याद कर लेगा, बट वो एग्जाम में आनी नहीं तो उसका पर्पस नहीं है पढ़ने का। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होएगा, तभी पता चल पाएगा कि क्या टाइप के क्वेश्चंस वो पूछते हैं और कैसी प्रिपरेशन हमें चाहिए फेस टू में। हम्म। और लास्ट 2-3 साल से भी क्या है ना कि सर्कुलर्स की वेटेज काफी हो गई है। इस बार देखोगे कि डिस्क्रिप्टिव में भी डिटेल डायरेक्ट स्कीम पूछी थी। लास्ट ईयर उन्होंने एनबीएफसी के बारे में सर्कुलर पे क्वेश्चन था, इवन डिस्क्रिप्टिव में भी एनबीएफसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी एमसीक्यू आया था। एमसीक्यू आए थे इस बार, हाँ, आरबीआई का सर्कुलर से क्वेश्चन थे। तो सर्कुलर्स का इवन फेज 1 में भी देखा इस बार बहुत क्वेश्चन, आरबीआई की रिपोर्ट, सर्कुलर। बहुत ज्यादा उसको वो तो पढ़ना बहुत जरूरी है। नोटिफिकेशन, आरबीआई नोटिफिकेशंस, मास्टर डायरेक्शंस, ये सब पढ़ना तो बहुत जरूरी है। मतलब ये इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, हम्म। क्योंकि इंटरव्यू में फिर क्वालिटी आंसर्स हम दे सकते हैं इंटरव्यू को, तो वो भी इम्प्रेस होता है इस चीज से कि हमने आरबीआई के सर्कुलर्स भी पढ़ रखे हैं। वो हम्म। भी एक एडवांटेज रहता है। एक और जनरल क्वेश्चन आता है कि जैसे आरबीआई की वेबसाइट पे बहुत सारे सर्कुलर्स आते हैं, मतलब हर मंथ, और सब स्पेसिफिकली अप्रैल मंथ में तो हमेशा बहुत सारे सर्कुलर आते हैं। सबसे ज्यादा सर्कुलर आई थिंक अप्रैल मंथ में ही आते हैं ना, और वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमें सारे सर्कुलर पढ़ने चाहिए, या कुछ सर्कुलर ऐसे होते हैं जो सिर्फ बैंकिंग, हम्म। बैंकों के लिए होते हैं, जो बैंक के यूज के लिए होते हैं, जो उनका वर्किंग वर्किंग से रिलेटेड, बैंक के वर्किंग से रिलेटेड होते हैं। सर इसी रीजन से मैंने वो बोला था कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना बहुत जरूरी है, तभी हम्म। हमें आइडिया लग पाएगा। बिकॉज अप्रैल फर्स्ट या फिर अप्रैल फर्स्ट सेकंड तक आरबीआई क्या करता है, सारे सर्कुलर्स को कंसोलिडेट करके मास्टर सर्कुलर या मास्टर डायरेक्शन रिलीज करता है हर साल। हम्म। तो वो पढ़ना तभी इम्पोर्टेंट है जब आपके सिलेबस में वो चीज, मतलब प्रीवियस ईयर में उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम्म। अगर कोई रेगुलेटरी फॉर्म आरबीआई ने रिलीज करा है तो उसका हम हमारे से बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज हमसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। बट जैसे लीड बैंक स्कीम में अपडेट्स हुए हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में मास्टर डायरेक्शन लॉन्च करा है, या फिर हम्म। कोई एससी एसटी कम्युनिटी को फाइनेंस के लिए कोई सर्कुलर लॉन्च करा है, या एमएसएमई के लिए करा है, तो वो सब चीज पढ़ना या बहुत जैसे जरूरी है। बेसल नॉर्म्स हो गए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड कोई सर्कुलर है। बिल्कुल वो चीज पढ़ना बहुत हाँ जरूरी हाँ। है। हर चीज पढ़ना जाएंगे तो वो याद ही नहीं हो पाएगा। अप्रैल में ही वो मिनिमम 15-20 मास्टर सर्कुलर, मास्टर डायरेक्शन करते ही करते हैं रिलीज। ओके ओके। सो एक न्यूज बहुत सारी आती है, तो न्यूज को कैसे फिल्टर आउट किया आपने प्रिपरेशन के दौरान, कि ये सिर्फ इन्हीं स्पेसिफिक न्यूज को? क्योंकि मेरे हिसाब से मैं अगर एनालिसिस किया मैंने कि जो आपका फेज 2 है, फेज 2 के लिए आप न्यूज़पेपर करंट अफेयर में सिर्फ मतलब मीन्स करंट अफेयर के लिए आप रेगुलेटरी सर्कुलर को पढ़ लो, प्लस हम्म। आप न्यूज़पेपर सीए को कंप्लीटली छोड़ सकते हो, रिपोर्ट सेक्शन है वो कर लो, या कोई इंटरनेशनल सबमिट हुई है जो इंटरनेशनल, जैसे यूएन की है या वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएन बॉडीज सारी, हम्म। इनसे रिलेटेड न्यूज है वो पढ़ लो, बाकी न्यूज को स्किप कर सकते हो। एज पर माय व्यू, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस कि जो फेज 2 के लिए न्यूज़पेपर स्पेसिफिकली न्यूज करंट अफेयर है जो सर फेज 2 के लिए न्यूज़पेपर मेरे लिए सर वो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए। डिस्क्रिप्टिव के लिए, यस। बाकी ऑब्जेक्टिव पार्ट में देखें तो जैसे ईएसआई में वो कभी कोई इंटरनेशनल समिट वगैरह पूछ लेते हैं, हाँ 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 तो वो सब तो ऑलरेडी किसी न किसी कंटेंट में आपको मिल ही जाएगा। हाँ हाँ, जैसे या हमने तो फिर अलग ही दे स्कीम्स। रखा है कंटेंट, बिल्कुल। रिपोर्ट्स का, और वो सबमिट का हम अलग से भी देते हैं। तो वो रिपोर्ट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। ऑल्दो हम्म। उतना नहीं आता, जैसे 2022 वाले अटेम्प्ट में रिपोर्ट्स एक भी नहीं आई थी। बट लास्ट ईयर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट आई गेस एक रिपोर्ट तो आई, डिस्क्रिप्टिव में आई थी। डिस्क्रिप्टिव में हाँ 3 रिपोर्ट्स आई थी। हाँ हाँ, और वर्ल्ड इकोनॉमिक उस आउटलुक आया था उसमें, ईएसआई में। हाँ वर्ल्ड, और रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस भी आया था आरबीआई वाला। हम्म। तो वो सब चीज डिस्क्रिप्टिव में बहुत हेल्प करेगा। बाकी न्यूज़पेपर फेज 2 में उतना रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव सेंस में तो नहीं है। ओके ओके। और फेज 1 के लिए भी ना बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि मतलब हमें सारी न्यूज पढ़नी चाहिए कि नहीं, क्योंकि अभी क्या हुआ ना कि जैसे जैन फैब में अभी क्या ना, एक एग्जांपल देता हूँ कि जो पीआईबी है, हम्म। पीआईबी में एक एक दिन में 100+ आर्टिकल्स आ रहे थे। और उसमें जनरली क्या रहता है ना, पीआईबी में आपका स्कीम्स का, इनिशिएटिव्स हम्म। का, और इलेक्शन टाइम था तो गवर्नमेंट ज्यादा भी कर रही थी। बिल्कुल सर। तो
इस तो सिनेरियो में कैसे फिल्टर आउट करेंगे? सब वही स्ट्रेटेजी सेम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस और सिलेबस याद होना चाहिए। जब तक हम्म। ये दो चीज नहीं होगी तब तक, क्योंकि सर हम कोई भी चीज फॉरकास्ट प्रीवियस हिस्ट्री देख के ही कर सकते हैं ना, कि लास्ट ट्रेंड्स कैसा रहा है, उसके बेसिस पे ही हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें आगे कैसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और हमें कितना पढ़ना चाहिए। हम्म। तो स्टिक टू द सिलेबस एंड एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी तब तक हम उसमें नहीं सिलेक्टिवली चूज कर पाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है। ओके। बाकी न्यूज़पेपर वाले बाकी सब सही है बाकी तो। अच्छा, एक और क्वेश्चन की जैसे आपने स्टार्ट किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, एट द टाइम डिस्क्रिप्टिव था, 21 में डिस्क्रिप्टिव आ गया था, तो एज ए बिगिनर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी एज ए बिगिनर? सर मेरे को ऐसा लगता है कि हमें स्टार्ट करना चाहिए प्रेसी राइटिंग से। बिकॉज प्रेसी राइटिंग में हमें कोई आइडियाज नहीं सोचने हैं या फिर कुछ ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना, हमें केवल उसको समराइज करना है, वन हम्म। थर्ड वर्ड में समराइज करना है। तो दैट विल बूस्ट आर कॉन्फिडेंस। फिर वहां से हम थोड़ा से नॉर्मल ऐसे टाइप्स में जाएंगे कि बहुत ही बेसिक ऐसे राइटिंग करेंगे 300 वर्ड्स का, फिर उसको इंक्रीज कर लेंगे ऐसे राइटिंग को, फिर 300 से 400 वर्ड्स, फिर 500, फिर 600 वर्ड्स, क्योंकि करंट एग्जाम में 600 वर्ड्स में ऐसे आ रहा है। फिर हम्म। ऐसे राइटिंग से हम स्विच कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर राइटिंग में। उसमें भी पहले हम बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी और द फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक, हम्म। और डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसीज एंड बैंक्स। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम शुरू में सॉल्व करेंगे, फिर हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, तो वो एक ग्रेजुअल पाथ से आराम से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो सकती है। बाकी मैंने अपने अटेम्प्ट में क्या करा है, एआई का बहुत ज्यादा यूज करा है। हम्म। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कोई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है, तो एक वेबसाइट है wordcounter.net, उसका जो इंटरफेस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है आईबीपीएस के। उसमें ना तो ग्रामर जो मिस्टेक्स है वो शो करेगा, वो केवल वर्ड काउंट करेगा। तो मैंने वो वेबसाइट खोली, उसके साथ मैंने क्लॉक लगा लिया। तो मेरे को बिल्कुल एग्जाम वाला फील आ गया जब मैं आंसर टाइप कर रहा हूँ। ये हो गया। फिर उसके बाद जब मैंने आंसर टाइप कर लिया तो मैं एआई से, फिर जैसे चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी से मैंने फिर पूछा कि इस ये क्वेश्चन है, ये आंसर, इसमें क्या चीज गलत लग रही है। हम्म। तो वो फिर मेरे को उसमें सब मेरे को सही बताता है कि ये चीज गलत लिखी है, ये चीज और इंक्लूड हो सकती थी। और फिर मैं उससे एक रिव्यू पूरा ले लेता था। तो इसका मैंने बहुत ज्यादा यूज करा है। यस यस, मैंने भी एक वीडियो बनाया था इसमें कि चैट जीपीटी से आप कैसे एवेल्यूशन कर सकते हो। वो काफी हेल्पफुल है जो खुद से प्रैक्टिस करे, क्योंकि बहुत देखो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मतलब हर किसी स्टूडेंट का चेक कर पाना, हर टॉपिक का मॉक टेस्ट तो किसी प्लेटफॉर्म के लिए पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ही नहीं तो है सर। और फिर हाँ, ये है ना कि इंस्टेंट रिव्यू मिलता है। हाँ अगर तुरंत मिल जाता है मैं और बहुत अच्छा रिव्यू देते हैं, मतलब हम्म, रिकमेंड भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स रिकमेंड करते हैं कि आपको ये चीज मिस हो गया है इसमें ये। मैं मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना क्वेश्चन या आंसर सबमिट करूंगा तो वो मिनिमम 2-3 डेज लेंगे उसको हम्म। इवैल्यूएशन में। तब तक मैं भी भूल जाऊंगा कि मैंने वो क्या सोच के वो लाइन लिखी थी और मेरा हम्म। उस टाइम पे क्या पर्सपेक्टिव था। तो चैट जीपीटी लेकिन इंस्टेंट मेरे को बता देगा कि जो है ये चीज ऐसे नहीं लिखनी थी, या फिर ये वाली चीज और इंक्लूड हो सकती थी उसमें। और वो प्रेसी भी बहुत अच्छा इवैल्यूएशन करते हैं चैट जीपीटी में। तो वो चीज है। ओके ओके। So, Ikans, and now comes to the interview part. You appeared in the offline and open interview as well. So, how was it? What was your experience in offline interview? And you have appeared twice हम्म। before this interview in RBI final interview. सर इस बार जो मॉक इंटरव्यू था वो कॉन्फिडेंस बूस्टर था मेरे लिए। बिकॉज मैं बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड था मॉक इंटरव्यू में। उसके बाद इतना अच्छा परफॉर्मेंस लगा मेरे को, मतलब सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस था, तो मेरे को लगा कि इफ आई प्रिपेयर प्रिपेयर तो मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ। बाकी फीडबैक जो मिला था तो वो मेरे कॉन्फिडेंस बूस्टर था। और इस बार का जो इंटरव्यू था वो भी प्रीवियस दो इंटरव्यू से बिल्कुल डिफरेंट था। बिकॉज प्रीवियस दो इंटरव्यूज में दे ट्राई टू जज माई इंटेलेक्चुअल और थिंकिंग एबिलिटी या फिर स्पीकिंग स्किल्स, उन सब पे उन्होंने शायद मेरे को जज करा। बट इस बार उन्होंने मेरे को जज करा एज एन ऑफिसर, बिकॉज मैं बैंक ऑफ इंडिया में वर्क कर रहा था। तो उन्होंने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे और वही चीज मोस्टली जज करा था। ओके, एक और जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं ना, ऑनलाइन या जूम इंटरव्यू को प्रेफरेंस देते हैं ऑफलाइन। सो इस पे क्या व्यू है कि ऑफलाइन इंटरव्यू, मेरे हिसाब से तो मैं जो भी मतलब आसपास के स्टूडेंट है, चाहे आपको थोड़ा ट्रेवल करना पड़े,
you should appear in the offline mock interview to boost your confidence. Because Zoom में इंटरव्यू में तो वो मतलब फीलिंग ही नहीं आती इंटरव्यू वाली. इवन सर आई हैड टू ट्रेवल 250 किलोमीटर्स फॉर द ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू. तो मैं भी ये सजेस्ट करूंगा कि अगर ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू कहीं पे अवेलेबल है तो वो ज्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज वो पर्सनल, क्योंकि हमें भी फिजिकल इंटरव्यू देना है. जो 2021 वाला अटेम्प्ट था उसमें ऑनलाइन इंटरव्यू था, तो उसमें वो चीज हेल्प कर सकती थी. बट अभी क्या है, वो पर्सनल टच होना बहुत जरूरी है, इसलिए ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू मैं भी यही प्रेफर करूंगा. ओके ओके. सो एकांश, हमने सब डिस्कस कर लिया है मोस्ट ऑफ द थिंग्स. सो एक और क्वेश्चन बस कंटेंट से रिलेटेड कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछना कि क्रैक ग्रेड बी के कंटेंट को यूटिलाइज करने का क्या तरीका होना चाहिए, बेस्ट मतलब वे में कैसे यूटिलाइज करें इसको. बेस्ट वे में सर सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं. सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हैं. फिर जैसे जनरल अवेयरनेस का बहुत अच्छा बायोफिकेशन है. न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर का अलग आता है, पीआईबी अलग आता है, आरबीआई नोटिफिकेशंस अलग आता है. तो इन सबको अलग अलग ही मतलब फोकस करना है. जैसे पीआईबी को हमें फेज 2 में ज्यादा फोकस देना है, फेज 1 में उतना नहीं देना है. फेज 1 में हमें मंथली जो पीडीएफ आती है जिसमें बाकी सब चीजें हैं उस पर थोड़ा फोकस देना पड़ेगा. बाकी फाइनेंस में अगर हम देखें तो फाइनेंस में बहुत सारे मतलब सिलेबस वाइज गिवन है. मतलब क्रैक ग्रेड बी का जो है पूरा कोर्स स्ट्रक्चर, वो पूरा सिलेबस वाइज है जहां तक मेरे को याद है. तो वो हेल्प कर सकता है कि जैसे आपने इन्फ्लेशन पे एक पीडीएफ पढ़ लिया क्रैक ग्रेड बी का, तो यू कैन मार्क इन द सिलेबस कि मेरा ये टॉपिक हो गया. फिर कोई एक पढ़ लिया टॉपिक, फिर उसको हाईलाइट कर सकते हो ताकि याद रहे कि मैंने ये चीज पढ़ रखी है. तो ऐसे करके उसको अच्छा यूटिलाइजेशन दे सकते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन अच्छा है. ओके ओके. सो एनी एडवाइस फॉर फ्यूचर एस्पायरेंट. एडवाइस सब वर्क हार्ड. बाकी वर्क हार्ड के साथ स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है. जैसे मैंने एआई का यूज करा है सभी अटेम्प्ट्स में, तो अभी वो उसका बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं. बाकी सब डिस्क्रिप्टिव में तो बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं. बाकी मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी एआई का बहुत यूज करा है. कुछ क्वेश्चंस का मैंने आंसर एआई से बनवाया, जैसे वाई यू वांट टू गेट इनटू द रिजर्व बैंक, और क्योंकि इसके बहुत सब लोग बहुत नॉर्मल से आंसर देते हैं कि वही बेसिक से आंसर देते हैं. तो मैंने अपने आंसर्स देके, मतलब मैंने पॉइंट्स दिए चैट जीपीटी को कि मैं ये रीजन है आरबीआई जाने के. उसके बाद उसने मैं बहुत इंटरेस्टिंग आंसर बना के दिया उसके रिगार्डिंग. तो या फिर डिफाइन माई, मतलब अपने आप को डिफाइन करना इंटरव्यू में, तो उसका मैंने केवल अपना डेटा दे दिया कि मेरा नाम ये है ये है ये है. फिर उसमें चैट जीपीटी ने बहुत अच्छे से उसका एक स्मार्ट रिप्लाई बना दिया. तो एआई का बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं. बाकी फेज 1 बहुत जरूरी है. मोस्ट ऑफ द पीपल फेल इन फेज 1 बिकॉज वो फोकस करते हैं फेज 2 में. सबको डर फाइनेंस से होता है या फिर डिस्क्रिप्टिव से डर होता है, तो वो उनका मेजर टाइम ऑफ प्रिपरेशन रहता है हमेशा फेज 2, जो कि नहीं होना चाहिए. फेज 2 प्रिपरेशन आपका मेजर टाइम होना चाहिए. एक नोटिफिकेशन आने से पहले आप फेज 2 पढ़ लो. नोटिफिकेशन आने के बाद फेज 1 पे फोकस होना चाहिए सोलली. बिकॉज फेज 1 अगर क्लियर नहीं हुआ, और वो क्लियर भी 1 या 2 परसेंटाइल ही करेंगे, बिकॉज लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर 2 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो अराउंड 3500 या फिर 4000 पीपल ही क्लियर करने वाले हैं फेज 1. तो अगर फेज 1 ही सही से प्रिपेयर करके क्लियर नहीं हुआ, तो फेज 2 प्रिपरेशन किसी काम का नहीं है फिर. तो मेरे को ये लगता है कि आफ्टर नोटिफिकेशन सोलली फोकस शुड बी ऑन फेज 1. बाकी इंटरव्यू प्रिपरेशन में अपनी प्रोफाइल पे ज्यादा फोकस करना है, रादर देन कि हम आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ लें या फिर एनुअल रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी, या जो भी रिपोर्ट आ रही है वो तो सेकेंडरी चीज है. बट अपनी प्रोफाइल पे फोकस करना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने शुरू के अटेम्प्ट में नहीं करा. मेरा शुरू के अटेम्प्ट में यही फोकस रहा कि मैं जितना ज्यादा रिपोर्ट्स पढ़ पाऊंगा, जितना ज्यादा डेटा याद कर पाऊंगा, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा. बट बोर्ड ने मेरे से वो क्वेश्चंस ही नहीं पूछे. बोर्ड के पहले प्रेफरेंस तो ये कि वो आपको जाने, तो ये गलती रही मेरी स्टार्टिंग में. तो उस पे बहुत जरूरी कि पहले अपनी प्रोफाइल के बारे में अच्छे से जानना बहुत जरूरी है, कि कहाँ 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 पे पढ़ाई करी है, कौन सा, अगर 11th 12th में कॉमर्स लिया है तो वो क्यों लिया है, उसका क्या पर्पस था. तो वो सब चीजें पता होनी बहुत जरूरी है. Okay, okay. So thank you, Ekans, for this wonderful session, and I wish you good luck for your future journey.
and Yeah, thank you, sir. congratulations once again. Thank you. Thank you, sir.